کے بعد تقریباً 3 ہفتے اسلام آباد ہائی کورٹ بھی اور تقریباً پورا اسلام آباد ہی بند رہا بیکاز آف دا پیس ٹاکس دیٹ ور ٹیکنگ پلیس. سو اس دن کے بعد آج 2 ہفتوں کے بعد جب فائنلی ہیئرنگ آئی، میرے پاس عمران خان صاحب سے بہت اہم ملاقات ہو چکی بھی تھی اور بہت واضح انسٹرکشنز بھی تھی. اب سے کچھ دیر پہلے مجھ سے کسی نے پوچھا کہ آج کی ہیئرنگ میں آپ کو ملا کیا؟ میں کیا فار دا ٹائم بینگ تو صرف سی ایم صاحب کو ریلیف ملی ہے کہ سی ایم صاحب کو وعلیکم السلام، ان کے سوال کا جواب مل گیا ہے. میرے حصے میں کیا ڈلتا ہے یہ آئندہ تاریخ پر چیف جسٹس صاحب سے بہت امید رکھتا ہوں اور ساتھ میں فاضل جج صاحب سے کہ وہ فیصلہ کریں اور ہمارے حق میں کچھ بہتری کریں. میں آپ کو بہت جلدی سے کچھ باتیں آپ کو گوش گزار کر دوں کہ ڈیولپمنٹس کیا ہیں. عمران خان صاحب نے اپنی اس ملاقات میں بتایا کہ ان کی آنکھ کی بینائی میں کوئی امپروومنٹ نہیں ہے. ان کی آنکھ کی 85% بینائی جا چکی ہے اور بار بار ان کو ہاسپٹلز لے جایا جا رہا ہے، اس کے باوجود ان کی آنکھ میں کوئی بہتری نہیں آ رہی. جو عمران خان صاحب نے جس بات پر بہت زیادہ ایمفسائز کیا، انہوں نے کہا کہ میں مرد ہوں، میں مضبوط ہوں، میں یہ چیز برداشت کر لیتا ہوں، مگر میری بیگم کو اس کو سولیٹری کنفائنمنٹ میں 24 گھنٹے بند رکھا جا رہا ہے کمرے میں، کسی کے ساتھ ملاقات نہیں، کسی کے سلام کا جواب نہیں. یہ 24 گھنٹے کی جو کنفائنمنٹ ہے اور سولیٹری کنفائنمنٹ ہے، یہ ٹارچر ہے. نہ صرف ان کے لیے، یہ میرے لیے بھی ٹارچر ہے. یہ کون سا جرم ہے جس کی سزا ہے؟ کیا جج صاحب نے، ناصر جمشید رانا صاحب نے جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے جج تھے القادر کے، کیا انہوں نے اپنے فیصلے میں سولیٹری کنفائنمنٹ جس کی اسپیسیفک پنشمنٹ ہوتی ہے 73 PPC میں، کیا انہوں نے کوئی پنشمنٹ ایوارڈ کی ہے؟ تو جیل حکام ایک ایسی سزا عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کو دے رہے ہیں جو کہ فیصلے میں لکھی نہیں ہوئی. سو آج کی سب سے شاکنگ بات یہ تھی جس پر میں نے جج صاحبان سے یہ درخواست کی ہے کہ آپ سب سے پہلے اس کیس میں آئی جی جیل خانہ جات کو طلب کریں، جیل سپرنٹینڈنٹ کو طلب کریں، آپ ڈپٹی جیل سپرنٹینڈنٹ کو طلب کریں، آپ عمران خان صاحب کا علاج کا مکمل ریکارڈ طلب کریں، آپ ان کی اہلیہ بشرا عمران کی جو سرجری پرفارم ہوئی ہے الشفا میں اس کا مکمل ریکارڈ طلب کریں اور جاننے کی یہ بھی کوشش کریں کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے کہ جیل کے اندر میاں بیوی دونوں، یہ کوئی اتفاق کی بات نہیں ہے اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، جیل اتھارٹیز ہمیں بلا کے کہہ رہی ہیں کہ اب عمران خان صاحب کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی ہے، اب ان کی بیگم کی آنکھ کی سرجری ہے وہ پرفارم ہو رہی ہے. سو یہ تمام چیزوں کی جواب دہ اڈیالہ جیل ہے. اڈیالہ جیل جب سب سے پہلے کورٹ میں آئے اور آ کے بتائے کہ ان کو قید تنہائی جو کہ ٹارچرس ہے، جس کو کوئی بھی ہیومن رائٹس کا فورم، چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز ہو، چاہے وہ نیلسن منڈیلا رولز ہو، چاہے وہ جیل مینول ہو، چاہے وہ پریزن رولز ہوں یا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہو، اس کی اجازت ہی نہیں ہے. سو ایک انلیگل پنشمنٹ از بینگ کیریڈ آؤٹ آن دا کپل. ان کی آنکھ کی کنڈیشن بڑی کمپلیکیٹڈ اس وقت ہوئی ہے، الارمنگ اور بڑی کنسرننگ ہے. سو عدالت سے سب سے پہلے یہ استدعا ہے، عدالت چاہ یہ رہی تھی کہ نیب کی جو آفر ہے وہ ہم قبول کریں اور ہم مین اپیل آرگیو کرنا شروع کر دیں. اور جج صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہم روز کے حساب سے بھی اس اپیل کو سننا شروع کرتے ہیں تو 10 دنوں کے اندر اپیل کا آپ فیصلہ لے لیں. جس پر ہمارے دلائل یہ تھے کہ جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ 10 دن کے اندر فیصلہ ہو سکتا ہے، 10 دنوں کے اندر کیا یہ انلیگل پنشمنٹ کنٹینیو کرے جو اڈیالہ جیل میں دی جا رہی ہے، سولیٹری کنفائنمنٹ؟ کیا آنکھ کی کمپلیکیشن میاں بیوی دونوں کی جو کہ اتفاق نہیں ہو سکتا، کیا اس کی تفتیش ہونا ضروری نہیں ہے؟ سو آج بڑے کنسرننگ، شاکنگ اور الارمنگ باتیں بینچ کو بتائی گئی ہیں. بینچ اس کے بعد میرے خیال میں سوچنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ ہمیں کیا ریلیف ہے جو وہ دیں. آج ابھی تک تو کوئی تاریخ کا بھی اناؤنس نہیں کیا، مگر ہمارے دلائل پر فیصلہ محفوظ ہے کہ آیا اسلام آباد ہائی کورٹ اپیل میں آگے بڑھے گا یا ہمیں ضمانت میں آگے بڑھنے کی اجازت دے گا. ہماری ان سے یہی درخواست ہے کہ آپ سب لوگوں کو بلائیں، آپ امائکس اپوائنٹ کریں، نیوٹرل وکلاء کو آپ بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ کیا سولیٹری کنفائنمنٹ دینا نیب کے جرم میں ایڈنگ اور ابیٹنگ میں بشرا عمران کو، ایک خاتون کو 15 مہینے ہو گئے ان کی ضمانت نہیں سنی جا رہی، کیا یہ انڈر دی سرکمسٹانسز جسٹیفائڈ ہے؟ کیا یہ ان ہیومین ٹریٹمنٹ نہیں ہے؟ کیا یہ غیر انسانی سلوک نہیں ہے؟ اس پر آپ نیوٹرل، انڈیپینڈنٹ تیسری رائے آپ
मुल्क के माहिर जो कानूनी माहिर हैं, अमाइकस क्यूरीज आप अपॉइंट करें, उन्हें बुलाएं, उनको सुनें, जेल वालों को बुलाएं, तमाम रिकॉर्ड बुलवाएं और फिर आप जो हुक्म करेंगे। अगर आप समझते हैं कि ना वो कैद तन्हाई में ना आंखों का मसला है, हम अपील आर्ग्यू करना शुरू करेंगे। मगर अगर ये दोनों इश्यूज कंटिन्यू कर रहे हैं तो मेरी लीगल इंस्ट्रक्शंस ये हैं, जो कि बहैसियत वकील भी एज ए प्रोफेशनल लॉयर मैंने फाजिल जज साहिबान को ये बात कही आज कि जो जुमला मुझे यूज़ किया जाता है, जो बताया जाता है इमरान खान साहब का, वो एक अमानत होती है, ना उसमें मैंने कभी इजाफा करना है ना उसको मैंने घटाना है। जैसे उन्होंने बताया वैसे ही मैंने आज अदालत के रूबरू वो तमाम जुमले उनके रखे हैं, जिस पे अदालत ने अपनी तसल्ली का इजहार किया कि हम यकीन करते हैं जो बात आप लोग एज अ बार आके स्टेट करते हैं। सो अब देखना ये है कि मंडे को आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या करती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को हर सूरत हालात ऐसे हो गए हैं कि उनको जमानतों की एप्लीकेशनें सुननी पड़ेंगी। पहले जमानतों की हेयरिंग पर फैसला करें, जिसको नैब चाहती है कि ये सुनी ही ना जाए, इन पर पर्दा ही पड़ा रहे इस फैसले के ऊपर। सो जब ये केस खुलेगा तो कोई तो बात है कि नैब हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही। जिस वक्त ये हमें आधा घंटा मिल गया अपनी जमानत के एप्लीकेशन पे दलील देने का, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि इस मुकदमा है। कितना खोखला मुकदमा है। इसमें इमरान खान साहब और उनकी एहलिया के बैंक अकाउंट्स में या 1 रुपए का भी फायदा नहीं हुआ, नेशनल एक्सचेकर को 1 रुपए का नुकसान भी नहीं हुआ, 1 इंच जमीन का हिस्सा उनके नाम पर नहीं, कोई माली बेजाब्तगी नहीं। तो नैब कैसे हरकत में आई हुई है? 14 साल सजा, 7 साल सजा और कैद तन्हाई में जो टॉर्चरस है। सो आज इस पर बहुत तफसीली दलाइल जजेस को दिए। मुझे इस बात की खुशी है कि आज उन्होंने इस बात पर इंसिस्ट नहीं किया कि आप अपील आर्ग्यू करें। जजेस सोच रहे हैं, राइट है ऑनरेबल जजेस का, ऑर्डर आना अभी बाकी है। लेट्स सी कि इंशाल्लाह। सलमान सफदर साहब, आप 2 दफा इमरान खान से मुलाकात के लिए अडयाला जेल में जा चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इमरान खान साहब के केसेस के वकालतनामे जो हैं वो साइन करने की इजाजत नहीं दी जा रही सुप्रीम कोर्ट में अपीलें दायर करने के लिए। आप जब दूसरी मरतबा इमरान खान साहब से मिलने गए थे, क्या आपने वहाँ पे कोशिश की थी या बातचीत की थी वकालतनामे साइन करने की? आपको क्या कहा गया था? हर दफा जेल अथॉरिटीज और जेल सुपरिटेंडेंट को ये बात कहते हैं कि हमें वकालतनामे दें। आज भी ये नुकता हाई कोर्ट में उठाया गया। इंशाल्लाह वकालतनामे आ जाएंगे। अलीमा आप आई हैं, बात करें। सर इधर ही लगे रहे, सलमान साहब लगे रहे बेशक। तो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस जो मुअत्तली सजा की हमने दरखास्त दे रखी थी, और उसमें आज 16 महीने के बाद जो है माशाअल्लाह सुनवाई की उम्मीद थी। और जब लगी थी पिछली मरतबा तो बैरिस्टर सलमान सफदर साहब को इजाज़त मिली कि आप जाके इमरान खान साहब से मुलाकात करें। तो आज इन्होंने शुरुआत ही यहाँ से की कि मैं आपको मुलाकात की बताता हूँ कि मोहतरम इमरान खान साहब की मुलाकात इनकी जो है 65 मिनट तक तकरीबन जारी रही, और 65 मिनट में तमाम चीज़ें उनके साथ जो है ज़ेर बहस आई। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बात अलार्मिंग भी है, खौफनाक भी है, और वो एक ऐसा सानेहा है मैं समझता हूँ जो पाकिस्तान तो क्या दुनिया की तारीख में वो गूंज उसकी आपने ब्रिटिश पार्लियामेंट में सुनी होगी, और आपने दुनिया जहान की जो है वो उसमें उस पर जो है बहुत ज़्यादा मुतफिक्र है कि ये क्या पाकिस्तान की ये हाल किया जाता है साबका वजीर आजम से, और उनकी जेलों में ये आलम है। मोहतरम इमरान खान साहब की जो दाहिनी आंख का जो है रात की तारीकी में चोरी चोरी उनको जो है अस्पताल में ले जाया जाता है, और चौथी मरतबा लेकर गए हैं उन्हें। और आपने देखा कि उससे पहले भी जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या अफरीदी साहब ने जब सलमान सफदर साहब को एज अ फ्रेंड ऑफ द कोर्ट बनाकर भेजा था कि लिविंग कंडीशन के बारे में बताया जाए, उस वक्त भी इनकी रिपोर्ट में बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ था कि 15% उनकी बीमारी उसके नतीजे में जो वो बिम्स में लेकर गए, और उसमें जो है बाकी कोई इफाका नहीं हुआ है। और अक्टूबर 2025 से मोहतरम इमरान खान साहब को ये आर्ज़ा दाहिनी आँख की तकलीफ का उन्होंने इदराक हुआ, मुकम्मल ब्लॉक हो गई उनकी
दाहिनी आंख, और वो बार बार इसरार करते रहे सुपरिंटेंडेंट जेल की कान पे जूं तक ना रेंगी, और इसलिए कि वो खुद भी जो है जाहिर है कि बेबस होता है, कोई और उसको कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये यकीनी बनाया गया कि खान साहब को जितनी अजियत दी जा सकती है वो दी गई। और उसके बाद जब ये बात ऊपर से बिल्कुल ब्लॉक हो गई तो फिर जनवरी 30 जनवरी 2026 को, अक्टूबर से लेकर 30 जनवरी 2026 को उन्हें पिम्स में वो भी चोरी ले जाया गया, और रात की तारीकी में 12-1 बजे पिम्स में प्रोसीजर किया गया 20-25 मिनट का, और जिस पर उनकी जो है 15% सिर्फ बीमारी वापस आई, और उसका भी वो छुपाते रहे, इख्फा करते रहे, क्योंकि ना फैमिली को इन्वॉल्व किया गया, ना कामरान जफर जो उनके मुआलिज हैं उसको, ना ही यूसुफ को जो है उनके 2 मुआलिज थे जाती, उनको भी एसोसिएट नहीं किया गया, किसी फैमिली को इन्फॉर्म नहीं किया गया। हालांकि जेल मैनुअल बड़ा वाज़ेह है इस बात पर कि अगर कोई ऐसा आर्जा हो जो उनको इमीडिएटली जेल से मुयसर ना आए और बाहर ले जाना पड़े, तो उनकी फैमिली को फौरी बताना पड़ता है, वकला को बताना पड़ता है, और लेकिन किसी को नहीं बताया गया और चोरी ले जाया गया। वो भी जब खबर आप में से किसी ने लीक की खबर आई तो फिर जो है उनके जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने कहा जी हाँ जी पिम्स में इनको लेकर गए थे, और वहाँ 20 मिनट के प्रोसीजर के बाद इनको वापस अडयाला जेल। अब जो दूसरी मरतबा ये हुआ, सलमान सफदर साहब ने जब वहाँ वो फ्रेंड ऑफ द कोर्ट की रिपोर्ट दी तो उसमें फिर जब हमने पिटीशन की तो वो इन्होंने भेज दी हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट के जो है 2 रुकनी बेंच ने 5 जजेस पर मुहित एक बोर्ड बना दिया, और बोर्ड ने भी जो रिपोर्ट दी वो भी आपके सामने है कि वो कहने लगे कि 30% अब इनकी बीनाई जो है दाहिनी आंख की आ गई है, और फलां डॉक्टर। आज के केस के हवाले से क्या कहेंगे सर? आज के केस के हवाले से आज की ये सारी दास्तान जो है ये सलमान सफदर बैरिस्टर ने ये बताया, लेकिन सबसे ज्यादा कंसर्न ये था कि न सिर्फ इमरान खान साहब की ये दाहिनी आंख की कैफियत का बताया, इन्होंने कहा जी 15% सिर्फ उनकी बीनाई आई है, बाकी मुस्तकिलन जाया होने का खदशा है या हो चुकी है। नंबर 1। नंबर 2 इन्होंने बताया कि बुशरा बीबी से आपके हुक्म के बावजूद के साइलान को मिलाया जाए, मुलाकात करवाई जाए ताकि इंस्ट्रक्शंस जो हैं ये ले सकें, क्योंकि मुलाकात तो आपको पता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की वजह से हो नहीं रही है। तो फिर लेकिन बुशरा बीबी को इनके इसरार के बावजूद नहीं मिलाया गया, हालांकि वो उसी जेल में मौजूद थी। तो इनको इनकी साइला के साथ जो है वो मुलाकात से माने रखा गया, और जहां तक ताल्लुक है उनकी बेटियों से जो बात पता चली वो ये थी कि बुशरा बीबी को भी दाहिनी आंख का उसी तरह की तकलीफ, बल्कि उससे भी ज्यादा शदीद तकलीफ हुई, और उनको वो शिफा में लेकर गई रात को, वो भी चोरी छपे रात को लेकर गए, और वहाँ उनको जो है वहाँ प्रोसीजर उनका जो है किया गया, और फिर उनको लाकर जेल में बंद कर दिया गया। और उनकी भी कैफियत जो है हालत ये है कि उनको उन्होंने काला जो है वो बस बांधा हुआ है, बैंडेज बांधा हुआ है आंख पर भी, और उनकी भी जो है हालत सेहत की जो है मामलात वो दुरुस्त नहीं है। इसलिए हमें बहुत ज्यादा इसका तजस्सुस भी है, सरासीमगी भी है। दूसरी बात ये है कि जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है, ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का सबसे ज्यादा इमरान खान साहब ने ये जो है कहा कि ये जो है 24 घंटे के लिए बुशरा बीबी को कैद तन्हाई दी जा रही है, और इमरान खान को 22 घंटे की कैद तन्हाई दी जा रही है। और इस कैद तन्हाई की वजह से बुशरा बीबी का जो है वो हालत इज़हार इतनी खराब थी कि उनको सहारा दे के उठाकर ले जाया जा रहा था। सो हमारे लिए ये लम्हा फिक्रिया सभी के लिए है, पाकिस्तान की आवाम के लिए है, दुनिया में इसका जो है सरासीमगी फैली हुई है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस बात को डिस्कस किया जा रहा है, क्योंकि कानून में देखें जब सजा दी जाती है तो वो एक लतीफ खोसा साहब सुन ले यार, प्रोविजन मौजूद है कि अगर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, ये एक प्रोविजन है कानून का
اگر وہ دینا مقصود ہو، وہ نہیں جوڈیشل ورڈکٹ میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے سالٹری کنفائنمنٹ کا، اور اس کی سالٹری بتائیے گا آپ کے ساتھ جو مکالمہ ہوا ہے